Bismillah Rahman Rahim. Let us start with the new chapter, chapter 12 of Singular Elastic Strain Energy. Okay, so if you look at it, strain energy is defined as the energy which is stored within a material when work has been done on the material. Uh, Simplest example for this is that if you have a rubber band, you extend it and you leave it, it returns back to its original position. Okay, when you extend it, the basically it gets deformed and energy is being absorbed from strain energy, and when you leave it, it returns back to its original position. Provided the main thing is that you are within the elastic limits. Then everything of this related strain energy law will be applicable. If you go beyond the elastic limit, you go in the yield zone, then all these relations related to strain energy will not be hold, because if you see this figure, uh, this is chapter is called elastic strain energy. So we will not be dealing with the plastic effects of the strain energy in the body. Okay. So as we know, the energy stored in the material when work has been done on it is termed the strain energy, and sometimes you also call it as the resilience of the body. So they are being used interdependently, either strain energy or resilience. So whenever work is being done, it is being considered as work done is basically the strain energy of the system. Okay, like here you can see these driving boards. This man basically is jumping in the swimming pool, doing some aerobatics or in Olympics. Okay, so these driving boards must be made from a material that can store a high value of elastic strain energy due to bending. This allows it to have a large flexure and therefore thereby transfer the energy to the driver as the board begins to straighten out. So the strain energy basically we will be as you know what are the modes of loading, different modes of loading. You have got axial or compressive load, then you have got modes of loading as um, shear loads, then you've got bending loads, and then you've got load in the form of torque loads, torsion loads. Okay, so here we will basically be considering first of all, that the in general there will be four types of loadings which can be applied to a material. Number one is basically direct load, which can be a direct load or axial load, as you already know. It can be considered as two categories. Number one is the tension, and number two is the compression. Okay, so here if you look at it, this axial rod, if you dare, whose cross section area is L, and it's basically its total length is L, and we want to consider it as a segment, one of a segment of length L as ds. The load applied is P, the axial load applied is P, and the cross section area is A. Okay, so this is the strain energy is basically work done. So strain energy for this structure will be given as P square ds upon 2E, or from 0 to L. If you take apply the limits, it will come out to be equals to, as integral ds from 0 to L, it will become out to be equal to P square L upon 2AE. Okay, and uh, you know stress is equals to force P upon area, and for P if you apply the value stress into area, you will get a relation as sigma square L upon 2E equal to sigma square upon 2 into volume of the part. Okay, this is for the strain energy. uh, this is for the strain energy under direct load, axial tension or compression. Then if another relation for the shear load, it will be strain energy U is equals to integral of Q square ds upon 2Ag. And if you replace the value from if you apply the limits, vertical limit from 0 to L, it will come down to equals to Q square L upon 2Ag. G is the shear modulus or modulus of rigidity. E is the modulus of elasticity, as you already know these terms. Further, if you want to convert it into resilience factor also, shear force will be equals to, shear stress will be equal to shear force per unit area, and apply the replace Q with shear stress into area value, you will get this relation. Tau square to G into volume of the bar as volume is Y, because A into L is nothing but it's the volume of the bar. Okay,
And then you have another bending is basically relation that you will derive. You will see we will drive all this. U again strain energy U will be equals to m square ds upon 2 ei. From 0 to L, if you apply it, comes out to equal to m square L upon 2 ei. But remember one thing, m will be treated as a constant. If n is a function of time, then this relation will not hold. Because why it will not hold? Because this is elastic strain energy. There is nothing for yielding a plastic over here. For strain energy, for torsion, it will be equals to t square ds, integral t square ds from 0 to L limits to gj, or it will be t square L upon 2 gj, where we have again assume that the torque is constant. Okay, this is very important. So as I have told you, here we assume that the strain energy is defined as the energy which is stored within a material when work has been done on the material. That is how you apply strain energy of a system. We will assume that the material will remain elastic, as I have told you before, while work is being done. Also, and we will assume that whatever the force or movement is applied, it has to be gradually applied, and it should not be a function of time. So here it is assumed that the material remains elastic uh, uh, while work is being done on it, so that all the energy is recoverable. Okay, again when we remove the, what does it mean? It means when we remove the load, the system will return back to its original position. Like this diver who's standing over here, when he has performed the somersault, then this beam which is being bent, it has gone under some deflection delta, it will return exactly back to its original position. Okay, so no permanent deformation occurs due to the yielding of the material. Thus, for gradually applied load, when we say gradually applied load, it means we will start applying the force from our movement from zero to some value which is beyond, which is below the yield of the material. As you already know, you have done this in your solid mechanics 1, and you also know from your materials metallurgy subject also. So, thus for a gradually applied load, the work done is straining the material will be given in the shaded area under the load extension curve, like this, from 0 to B. This is going to be the work done in the system. Okay, and this is the F delta or P delta graph. Okay, and this shaded region is also termed as the work done, which is in the form of equal to strain energy, and it is also being termed as the resilience of the material. So, the strain energy per unit volume is often referred to as the resilience. The value of the resilience at the yield point or proof stress for non-ferrous material is termed as the proof resilience. Okay. So, this unshaded area is also very important, but it is called as the complementary energy that we will not study. But this is the resilience, and this is which area is called as the complementary energy. Okay. So now these relations that we have over here, which relations? These relations, strain energy, U for direct load, tension compression, shear loads, bending and torsion, we will be start driving these relations. Okay. So we will start with this relation, strain energy, tension or compression. So now we go for the strain energy for the axial structures. We'll consider, if we do not consider the weight of the bar, okay, and our standard figure will be which figure? It is this figure. You always remember this. Okay. So consider a small element of bar length ds as shown. So if a graph is drawn from the load extension curve, the shaded area in the graph is being discussed with you. You know what is strain energy? It will be equals to basically work done, and work done is force into displacement, force P into displacement. But since we are starting from uh, this point and going above, so we will take it as the average. So strain energy will be U equals to half P delta. So what is the value? Your Young modulus is the ratio of stress and strain. Young modulus E is the ratio of stress upon strain, and you know stress is P upon A, and strain is change in length per unit original length. Okay, so it is being divided over here. When you can multiply it as
basically this is the change in length and this is the original length ds. Okay, now we are interested in finding what deflection. So deflection is basically, if you write over here, is you move it over here, equal to sign, and e will become in a denominator. It will be p ds upon ae. This is deflection equals to p ds upon e. So for bar element u will be equals to half into p, and in place of this delta we will put it p ds upon ae. Will come up with this value for a bar element q equals to p square ds upon 2ae. So total strain energy for a bar of length L from because the 0 to L, it will be equals to p square ds upon 2a, and apply the limits. We'll assume that the area of the bar remains constant. It means that this bar is not tapered. Okay, it's prismatic and it's not tapered. Okay, so if that is the condition, we assume that the area is constant along the length L. Okay, if it is tapered bar, a tapered rod, then this relation will not hold. Okay, remember this thing. Or in terms of the stress sigma, is equals to P upon A. So U is equals to sigma square, again for here P square upon L upon 2A, and if in place of stress equals to P upon A, so we can replace PA upon A with, then it's P square, so it comes out to be equals to sigma square AL upon 2A. And if you look at it, A into L is nothing but it is the volume of the bar. So relation is further simplified to sigma square into 2E upon volume of the bar. So if this is the strain energy and you divide this volume of the bar with this U divided by the volume of the bar, relation will be sigma square upon 2E, and this will be divided. So strain energy, or it will become as strain energy per unit volume, or if you will call it as strain energy per unit volume as the resilience of the body or bar subjected to direct loads, which can be tensile or compressive. So this sigma square upon 2e, we can also break it as sigma into sigma upon 2e. So it can be sigma by 2, and one sigma can be replaced by sigma by 2 into sigma upon e. We can write it like this, we say it's sigma square. But what is sigma upon e? It is nothing but it's the strain of the body. So it can be also written as strain energy per unit volume as sigma by 2 into sigma upon e equals to sigma by 2 into strain, sigma into strain upon 2. So the resilience comes out to be equals to half into stress into strain. So this relation, remember, is holding since we are neglecting the weight of the bar. If we include the weight of the bar, the bar is very heavy, then basically some factors will include into it in the strain energy function, and those relations will be like this relation will hold p square upon 2e, plus you will also add the density effect because you are considering the weight. Okay, so P into rho into g L square upon 2e plus rho g square into A into L cube over 6e. These effects will be included. So the last two terms, therefore, the modifying terms to equation this to account for the body weight effect of the bar. These two terms, this is the same if you look at it, P square L upon 2e when you neglect the weight of the bar. If you include the weight of the bar along with this, you will be adding these two terminologies, P rho g L square upon 2e plus rho g square AL cube upon 6e. We will be adding these terms, remember. Now we go to another strain energy loading method. But here our loading method is basically uh, the strain energy in shear. This is our loading method. We will start with this. Now consider the strain energy in shear. Okay, consider the elemental bar now subjected to a shear load Q. ये वही वाली बार है, मगर इस पे अब हम बेसिकली एक्सियल लोड नहीं लग रहा, बल्कि एक आपके पास ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, ये क्यू इस प्लेन के ऊपर, ठीक है ना, इस एच प्लेन के ऊपर लग रहा है एट वन एंड कॉजिंग। जब ये इसके ऊपर ये लोड यहाँ पे लगा तो ये क्या हुआ, ये डिफॉर्म हुआ। जब ये डिफॉर्म हुआ
तो बेसिकली क्या हुआ, इस शेयर की वजह से ये इसमें डिफ्लेक्शन भी आ गई, कॉजिंग डिफॉर्मेशन थ्रू। अब ये जो डिफ्लेक्शन आई बेसिकली कितना है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये लाइन ये इतना यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पर बेसिकली वर्टिकली, लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली जो डिफ्लेक्शन एंगल जो बना बेसिकली, ये तो डिफ्लेक्ट वैल्यू आई, लेकिन ये बेसिकली डीएस से कितना नीचे गया स्ट्रेट लाइन से, तो वो एंगल गामा गया, थ्रू एन एंगल गामा। और ये गामा क्या कहलाता है शेयर के अंदर, इसको हम कहते हैं बेसिकली आपके पास जो शेयर स्ट्रेन एंगल जो होता है आपके पास, जिसको हम गामा कहते हैं, द शेयर स्ट्रेन, ठीक है ना, गामा इज द शेयर स्ट्रेन। तो ये आपके पास गामा बन गया एंड शेयर डिफ्लेक्शन, और जो डिफ्लेक्शन हुई आपके पास ये डेल्टा हुई एज शोन, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जानते हैं जैसे स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली थी वो हमेशा क्या होती है, हाफ टाइम का वर्क डन हाफ, लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे फोर्स पी डेल्टा थी, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सिली अप्लाई कर रहे थे तो हाफ पी डेल्टा थी, लेकिन यहाँ पे आ गया हाफ, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्यू है और क्यू इंटू डेल्टा, मगर यहाँ पे जो ये क्यू है इट इज द शेयर फोर्स, रिमेंबर, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द स्ट्रेन एनर्जी इन शेयर, हाफ क्यू डेल्टा। तो हमें बेसिकली इंटरेस्ट किसके अंदर होगा, डेल्टा का। अब ये जो डेल्टा है बेसिकली, ये अगर आप देखें ये क्यू, इसमें क्या चेंजेस आई, या पहले तो ये स्ट्रेट था, लेकिन जब ये नीचे गया तो ये कितना गया बेसिकली गैमा, गैमा इज द एंगल टाइम्स द डीएस, ठीक है, गैमा डीएस। इसको हम डिफ्लेक्शन को क्या कह सकते हैं, गैमा टाइम्स डीएस। नाउ वी विल इंटरेस्टेड इन व्हाट विल बी दिस शेयर स्ट्रेन एंगल गैमा। अब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि शेयर की बात कर रहे हैं तो शेयर में आ जाएगा, ई नहीं यूज करेंगे, जी यूज करेंगे, तो जी विल बी shear stress upon shear strain. So it can what is shear stress, tau, shear strain क्या है, गैमा। तो अगर हम बेसिकली, और shear stress क्या होगी आपके पास, shear force पर यूनिट एरिया, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, और गैमा को अगर हम इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाएं तो जी नीचे आ जाएगा, तो गैमा क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन ए जी, दिस गैमा विल बी क्यू अपॉन ए जी। इस गैमा को अगर हम यहाँ पुट करते हैं हाफ क्यू गैमा डी एस पे, तो हमारे पास शेयर स्ट्रेन बन जाएगी हाफ क्यू क्यू अपॉन ए जी इंटू डी एस, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए जी डी एस। ये आपके पास बन गया शेयर स्ट्रेन एनर्जी रिलेशन, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप जानते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम शेयर विल बी इक्वल्स टू 0 टू एल क्यू स्क्वायर डी एस अपॉन टू ए जी, और 0 टू एल जब अप्लाई करेंगे लिमिट्स की बन जाएगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन टू ए जी, ठीक है, तो ये बन जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ पे तो हमने ये रिलेशन बन रहा है इन टर्म्स ऑफ शेयर फोर्स के रिस्पेक्ट से, लेकिन अगर आप चाहें इसको रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेस, तो क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं शेयर स्ट्रेस से, क्योंकि शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन ए के। तो अगर हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू के शेयर स्ट्रेस पुट कर दें, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये रिलेशन बन जाएगा यू इज इक्वल्स टू टॉ स्क्वायर ए एल अपॉन टू जी इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे ये बन गया टॉ स्क्वायर अपॉन टू जी, तो आपके पास यहाँ आया ए इंटू एल को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम तो वार से। तो अगर हम ऐसा कर दें तो आपके पास ये इसको हम अगेन वॉल्यूम और डिवाइड कर दें तो वो अगेन स्ट्रेन एनर्जी को यूनिट वॉल्यूम बन सकता है, जिसको हम आम जबान में रेजिलियंस भी कह सकते हैं, जिसको हमने पहले आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, जो कि टेंशन या कंप्रेशन की बात जिसमें हम करते हैं, जिसके अंदर हम वेट के इफेक्ट्स को नहीं कंसीडर करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग, अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बेंडिंग का, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखें तो बेंडिंग में जब भी हम करेंगे रॉड की बात नहीं करेंगे, बीम करे की बात करेंगे, ठीक है ना, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेट एन एलिमेंट नाउ बी सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये, बेंडिंग मोमेंट विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कॉजिंग इट टू बेंड इनटू, जब भी बेंड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, याद है, ये बेंडिंग आ जाएगी, ऊपर की तरफ जो है कंप्रेसिव फाइबर होंगे, नीचे टेंसाइल फाइबर होंगे, ठीक है ना, कंप्रेशन नीचे टेंशन, कॉजिंग इट टू बेंड एन आर्क ऑफ रेडियस आर, ये अगेन रेडियस आर एंड सबस्टेंडिंग एन एंगल थीटा, और ये एंगल क्या होगा, डी थीटा आपके पास आ जाएगा एट द सेंटर, ठीक है। दिस बीम विल ऑल्सो हैव मूव थ्रू अगेन एन एंगल डी थीटा, तो ये बेसिकली यहाँ से ये बेंडिंग होगा, बल्कि बीम भी जो होगा वो मूव कर देगा एन एंगल, ये बीम पहले स्ट्रेट था, इसमें एंगल कितना रोटेशन आ गई, डी थीटा मूव कर गया। तो अगेन यहाँ पे जब हम फोर्स में बात कर रहे थे तो स्ट्रेन एनर्जी क्या थी, हाफ क्यू डेल्टा, जब हम एक्सियल की बात कर रहे थे तो स्ट्रेन एनर्जी थी हाफ पी डेल्टा। अब हम बीम पे बात कर रहे हैं तो बीम में जो आपका एक्साइटर है वो मूवमेंट है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, बेसिकली बीम पहले स्ट्रेट था फिर बेंड हुआ तो डेफिनेटली जीरो से स्टार्ट होगा सब कुछ, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी विल बी बट इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज नथिंग बट
हाफ इंटू मूवमेंट दिस m इंटू एंगल टर्न थ्रू। अगेन ये जो एंगल कितना टर्न थ्रू हुआ, ये डी थीटा हुआ इन रेडियंस, तो हाफ m डी थीटा। ये बात तो आपको पता चल गई। अब आप जानते हैं s किसके बराबर होता है, आर थीटा के। अगेन ये बेसिकली आपको पता है, तो अगेन हाफ m डी थीटा हो गया आपके पास। तो आप ये जानते हैं ds किसके बराबर होता है, आर डी थीटा के। और आप ये भी जानते हैं जब बेंडिंग होती है तो याद है जो बेंडिंग रिलेशनशिप है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। इसमें हमें बेसिकली कितना बीम बेंड हुआ वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, डी थीटा के ऊपर। हमारा सारा इंटरेस्ट ये होगा कि हमें डी थीटा निकालना है। तो ये डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप और से देखें, यहाँ से अगर हम देखें, डी थीटा विल बी इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हैं ये, और ये यहाँ पे ये होगा आपके पास, इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, एम अपॉन ई आई, यहाँ पे हो जाएगा एम अपॉन ई आई इंटू डी एस। अगेन क्योंकि हम ये बात कह रहे थे हमारे पास ये हमने बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे डी थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर, और 1 अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, एम अपॉन ई आई इंटू डी एस। यहाँ से हमने इसकी आर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी, एम अपॉन ई आई इंटू डी एस, तो ये डी थीटा बन गया हमारे पास, और यही डी थीटा हमें चाहिए था। अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ एम डी थीटा, तो हाफ एम एंड व्हाट इज डी थीटा, एम अपॉन ई आई इंटू डी एस। अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिलेशन को, स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन क्या बन के निकल के आ रहा है, एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम बेंडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया। U इज इक्वल्स टू, ये तो आपके पास सिंपल रिलेशन है, लेकिन अगर हम पूरी लेंथ डी लेंथ एल पे अप्लाई करें बीम की, ये बीम का सेगमेंट था जिसकी लेंथ क्या थी हमारे पास, डी एस थी, लेकिन पूरे बीम पे अप्लाई करेंगे तो 0 to L एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI, यह बन गया आपके पास। सो if the bending moment is constant then this reduces to, the bending moment चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपके पास u इक्वल्स टू एम स्क्वायर एल अपॉन 2 EI, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आ गया हमारे पास। तो अभी हमने कर लिया, ये था हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन द बेंडिंग, दिस वाज द रिलेशन स्ट्रेन एनर्जी इन द बेंडिंग। अब हमारा एक और लोडिंग क्राइटेरिया बन गया है, एक और जो जिसमें हम क्या कहते हैं लोड अप्लाई करें तो स्ट्रेन एनर्जी उसमें सिस्टम में इंड्यूस होती है, और वो होगा आपका, अगर आप और से देखें तो इट विल बी स्ट्रेन एनर्जी इन द टॉर्जन। ये एक आपके पास नया सिनेरियो आ गया जिसको हम कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन द टॉर्जन। Now we will consider the strain energy in torsion. The element is now considered subjected to वही एलिमेंट जिसकी लेंथ ds थी, उस पर हमने ये टॉर्क t लगाया, ठीक है। टॉर्क t जब लगाया तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रोटेशन नहीं होगी, लेकिन रोटेशन तो होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट इज बीइंग कंस्ट्रेंड हो रही है, तो क्या होगा इसके अंदर एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ टॉर्क टी प्रोड्यूस एन एयर, तो उस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होगा, एक एंगल ऑफ ट्विस्ट जनरेट होगा, जो बेसिकली आप कह सकते हैं जिसे उसको हम डी थीटा कह सकते हैं, विच इज दिस डी थीटा, ठीक है ना। अबाउट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ से अगर हम एक एक्सियल फाइबर ले लें, यहाँ से फाइबर ले लें, तो ये बेसिकली फाइबर की पोजीशन ओरिजिनल थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क टी उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो इसके दौरान जो एंगल जनरेट हुआ, दिस एंगल अगर आप देखें इट इज़ कॉल्ड डी थीटा, ठीक है। तो अब अगेन जैसे हम स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग में जब बात कर रहे हैं तो वो बन गया था स्ट्रेन एनर्जी हाफ एम थीटा, क्योंकि वो मूवमेंट था। अब यहाँ पे टॉर्क आ गया तो स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी हाफ टी डी थीटा। ये वर्क डन एक्चुअली जो हुआ है वो हाफ टी डी थीटा हुआ, ठीक है ना। ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी तो वर्क डन है इज हाफ टी डी थीटा, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि फ्रॉम द सिंपल टॉर्जन थ्योरी आपको पता था ये टॉर्जन रिलेशन क्या होता है, टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा ओवर एल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एल हमारा वो डी एस है, तो डी थीटा हमें बेसिकली इंटरेस्ट किसमें, इस एंगुलर रिलेशन के अंदर डी थीटा में। तो बेसिकली आपके पास डी थीटा किसके बराबर हो गया, टी डी एस ओवर जी जे। ये तो आपके पास हो गया टी डी एस ओवर जी जे के बराबर आपका रिलेशन बन गया। तो आपके पास ये डी थीटा का रिलेशन हो गया। नाउ स्ट्रेन एनर्जी अगर हम देखें हमारे पास तो क्या होगा, हाफ टी डी थीटा, तो टी तो हमारे पास यहाँ डी थीटा की वैल्यू क्या बन गई, ये टी डी एस जी जे, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया डी थीटा वो। तो u इक्वल्स टू 0 to L टी स्क्वायर डी एस अपॉन 2 जी जे, और 0 to L अगर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो ये सिंपल सा रिलेशन बन जाएगा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर टॉर्जन सिनेरियो इज टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जे, ठीक है ना।
सिंस इन मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगेन हम ये बात जानते हैं कि टॉर्क तो आपका कांस्टेंट होता है, तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा u इक्वल्स टू टी स्क्वायर एल अपॉन 2gj। नाउ फ्रॉम द सिंपल, अगेन आपको कह रहे हैं बेंडिंग थ्योरी से बात ये कर रहे हैं कि आपको पता है कि रिलेशन आपके पास T अपॉन जे इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन आर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैं आपके पास इसको हम ये भी लिख सकते हैं टॉ मैक्स अपॉन आर, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगी आपके पास वो बेसिकली सेंटर के ऊपर आपको पता है मैक्स शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती हैं, ऊपर जो में होती है मिनिमम होती है, तो टॉ मैक्स अपॉन आर भी लिख सकते हैं। और आपको पता है आर क्या इज द आउटर रेडियस ऑफ द शाफ्ट, आर इज द आउटर रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो आप बेसिकली यहाँ पे ये जे की वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखें जे इज कॉल्ड द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जे हमेशा फॉर अ सर्कुलर रॉड या सर्कुलर बार या आपके पास जो भी होगी उसका जे क्या होता है, पाई बाय 2 आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, अगर हम बात कर लें, ठीक है ना। अगर सॉलिड होगा तो पाई बाय 2 R4 हो जाएगा, लेकिन अगर हॉलो होगा तो इट विल बी पाई बाय 2 R4 माइनस R4, ठीक है ना। तो अगेन अगर हम यहाँ पे ये जे की वैल्यू बेसिकली अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आपके पास बेसिकली टॉर्क आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, पाई ओवर 2R टॉ मैक्स R4 माइनस R4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें T इज इक्वल्स टू बेसिकली बन गया टॉ मैक्स अपॉन आर, और यहाँ जे की जगह हम बेसिकली यहाँ पुट कर देंगे पाई बाय 2 R4 माइनस R4, तो ये यहाँ पे ये टी की वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2R टॉ मैक्स R4 माइनस R4, ठीक है। तो बेसिकली अब हम ये t की वैल्यू जो होती है इसको हम ये t की वैल्यू जो बनी है हमारे पास इसको हम कहाँ ले जाएंगे, हम इसको यहाँ पुट करेंगे टी स्क्वायर की जगह। तो ये आपका रिलेशन बन गया सब्स्टिट्यूटिंग द स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन 11.8 u इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एल अपॉन 2gj, ये था ना, u इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एल अपॉन 2gj, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कौन सी है इतनी बड़ी सी, ये बेसिकली ये वैल्यू जो है वो ये है 2 पाई अपॉन 2R टॉ मैक्स R4 माइनस R4, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा पाई टॉ मैक्स अपॉन 2R R4 माइनस R4 का होल स्क्वायर, बड़ा रिलेशन बन गया L अपॉन 2G, और J ये क्या है पाई बाय 2 R4 माइनस R4, यही वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिलेशन बन जाएगा टॉ स्क्वायर मैक्स अपॉन 4G इंटू आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट, इंटू वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट, बेसिकली वो डिपेंड किस में करेगा आपके पास एरिया इंटू लेंथ, तो ये आपका बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट। तो अगर और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं स्ट्रेन एनर्जी से रेजिलियंस बनाने के लिए तो ये सिंपल रिलेशन बन जाएगा टॉ स्क्वायर मैक्स अपॉन 4G इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बन गया। तो हम बेसिकली इट शुड बी नोटेड दैट अगेन ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका रिलेशन जो है बन गया, ठीक है। और बेसिकली अगेन इसमें दो रेडियस का मतलब है, एक अगर शाफ्ट इज बेसिकली द हॉलो, ठीक है। और अगर शाफ्ट हॉलो नहीं होगी तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2gj, लेकिन अगर शाफ्ट हॉलो होगी और हॉलो सर्कुलर शाफ्ट तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा टॉ स्क्वायर मैक्स अपॉन 4G इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगेन ये रिलेशंस बने अगर आप गौर से देखें तो इन रिलेशंस में एक चीज़ बड़ी कॉमन है that in all these four types of loading case we again axial loading, shear, bending और torsion they are loading scenarios cases considered। स्ट्रेन एनर्जी एक्सप्रेशंस की एक सिमिलैरिटी नजर आएगी, वो क्या है स्ट्रेन एनर्जी U बेसिकली क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अप्लाइड लोड का स्क्वायर, अगर आप गौर से देखें जहाँ भी आ रहा है अप्लाइड लोड का स्क्वायर इनटू लेंथ अपॉन 2 इज अ कांस्टेंट क्योंकि वो एवरेज के लिए हम करते हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेटेड कांस्टेंट्स, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेटेड कांस्टेंट्स लाइक G और J हो गया आपके पास, या A इंटू E हो गया, या आपके पास अगर आप और देखें यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट्स थे वो एरिया इंटू शेयर मॉडुलस हो गया, ठीक है ना, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो ये बेसिकली आपके पास चार लोडिंग सिनेरियोज थे जो बेसिकली हमने अभी डिस्कस किए, जहाँ पे हमने ड्राइव किए ये रिलेशन ड्राइव किए, जब डायरेक्ट लोड का ये रिलेशन ड्राइव किया,
शेयर लोड का हमने ये रिलेशन ड्राइव किया, बेंडिंग लोड का ये ड्राइव किया और टॉर्शन लोड का ये वाला रिलेशन हमने ड्राइव किया। Now let us consider another topic very important which is directly related to this topic. An extension to this is basically the conservation of energy. Okay, the conservation of energy basically क्या होता है, we know energy can neither be created neither not destroyed. It can be basic changes from one form to another. Okay, so यहाँ पे हम basically consider करेंगे कि mechanical energy will be considered and जो हम other aspects of energies के जैसे chemical और ये electromagnetic को हम consider नहीं करेंगे, ठीक है। So basically हम यहाँ बात करेंगे कि the load will be applied slowly to the body and physically then the external loads, और basically जो load apply करेंगे ये body में क्या करेगा, deform करेगा, so that और ये जो deformation होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सटर्नल वर्क, ओके, जब वो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। सो द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द बॉडी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये जो जब हम बॉडी पे एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, इंटरनल वर्क के, जो वो इंटरनल वर्क क्या है, इज बेसिकली द स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। जब हम रबर को खींचते हैं तो वो डिफॉर्म होता है अपनी फोर्स लगाने से और उसके अंदर क्या हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है और वो बॉडी को वापस लाने में हेल्प करती है, which is stored in the body. Furthermore, when the loads are removed, this strain energy restores the body back to its original undeformed position. क्यों, ये एनर्जी कौन सी है, स्ट्रेन की वजह से वो खिंचता है, जब वो खिंचता है तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है और बेसिकली विद इन द इलास्टिक लिमिट रहेंगे तो यही स्ट्रेन एनर्जी उसको रिस्टोर करती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, प्रोवाइडेड, वही जो बात की है, द मटीरियल मस्ट रिमेन विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड इट मस्ट नॉट बी यील्डिंग, बेसिकली यील्ड ना हो ताकि वो बेसिकली प्लास्टिक जोन में ना चल जाए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक्सटर्नल एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि जो यू ई होगा वो विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू यू आई, ठीक है ना, ये फंडामेंटल रिलेशन है, ठीक है। सो अगर हम बात करें एक्सियली कि ये यू ई और यू आई अगर हम एक्सियली करें तो अगर एक बार ले लें, अगर ये ट्रस ले लें और ट्रस में क्या ये एक्सियल मेंबर्स हैं, इस पर अगर हम फोर्स पी लगाएंगे तो इस यहाँ पे इसकी लगाने से क्या होगा, ये जो ट्रस है थोड़ा सा नीचे डिफ्लेक्ट करेगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ पी डेल्टा। ये आपके पास क्या है, ये आपने एक्सटर्नल काम किया हाफ पी डेल्टा और बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारे एक्सियल मेंबर्स हैं तो इन सब की अगर हम स्ट्रेन एनर्जी करेंगे तो एन स्क्वायर एल अपॉन 2 है, लेकिन एक नहीं है, कई मेंबर्स हैं तो हम यूज क्या कर लेंगे, समेशन का साइन, तो हाफ पी डेल्टा इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर एल अपॉन 2a। ये बेसिकली हमने कंजर्वेशन एनर्जी से भी हम बेसिकली अगेन, अब ये इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप देखें तो इतनी बड़ी ट्रस है, अगर हम ये काम कर लें स्ट्रेन एनर्जी हर एक एनर्जी निकाल लें तो हमें इस ट्रस की यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आप देखें डेल्टा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा आ जाएगा, तो बड़ा एडवांटेज है आपके पास ये। अगर हम बात करें बीम की यानी कि सेकंड केस सिनेरियो जो है आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का, तो वहाँ क्या होगा, आपके पास ये फोर्स P लग रही है, अगर आप देखें तो ये क्या करेगा, ये P क्या करेगा, इस बीम को डिफ्लेक्ट करेगा, तो बेसिकली क्योंकि फोर्स ट्रांसवर्स फोर्स लग रही है और डेल्टा इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे भी हाफ पी डेल्टा, लेकिन बीम है ये एक्सियल नहीं है तो बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग का रिलेशन 0 to L m स्क्वायर dx अपॉन 2i, लेकिन समटाइम्स बीम में एक्सियल फोर्स नहीं लग सकती, लोडिंग आपके पास मूवमेंट्स की फॉर्म में भी आ सकती है, मूवमेंट्स की फॉर्म में ये आप जानते हैं एक फंडामेंटल सिनेरियो है। तो अगर यहाँ पे इसी ये यहाँ पे तो सिंपली सपोर्टेड बीम था, यहाँ पे हमने एक कैंटिलीवर बीम कंसीडर कर लिया, अगर हमने कैंटिलीवर बीम कंसीडर किया तो आप ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, तो इसमें हमने इस पॉइंट पे ये मूवमेंट एक्ट कर रहा है और ये मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये बीम के अंदर एक रोटेशन आएगी, रोटेशन जो होगी उसको हम एज अ थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप बेसिकली, क्योंकि मूवमेंट है। तो अगेन a beam is loaded by a couple movement और ये मूवमेंट क्या है, m नॉट, ठीक है, दिस मूवमेंट कॉजेज द रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ये कह रहा है क्या, कौन सी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट थीटा एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कपल मूवमेंट, ठीक है। सो दिस कपल मूवमेंट विल ओनली टेंड्स टू वर्क व्हेन, अगेन ये कब करेगा, जब ये रोटेट होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे ट्रांसवर्स फोर्स लग रही थी फोर्स पी, तो ये हाफ एक्सटर्नल वर्क हाफ पी डेल्टा था। यहाँ पे ये मूवमेंट है तो मूवमेंट क्या होगा, हाफ, और ये बेसिकली मूवमेंट कपल नॉट है, ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट नहीं है, कपल मूवमेंट को उसने एम नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा इज इक्वल्स टू, और बेसिकली जो बेंडिंग का आपके पास इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी होगी वो अगेन 0 टू एल एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ए होगी। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ कर रहा है वो आपसे, और वो क्या कह रहा है, द स्ट्रेन एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द, यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी है इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल बेंडिंग मूवमेंट m caused by the application of this internal bending moment m caused by the application of this m naught, ठीक है। once this m has been expressed, अगर ये m को एक्सप्रेस करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x है, we can calculate, क्योंकि बीम में बेसिकली रोटेशन हो रही है तो हम इस बीम का क्या निकाल सकते हैं, स्लोप, दिस थीटा, ये जो थीटा है ये क्या है, स्लोप, दिस थीटा स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अगेन दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े यूजफुल हैं और बड़े आराम से आप बेसिकली ये इतने मुश्किल क्या कहते हैं बीम्स के अंदर बेसिकली डिफ्लेक्शन और रोटेशंस आप स्लोप्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मगर कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस 14-23 इज क्वाइट लिमिटेड। कौन सी 14-23 भाई, कौन सी है यार, ये वाली 14-23 इज क्वाइट लिमिटेड। कैसे लिमिटेड है, अगर आप और से देखें, बिकॉज ओनली अ सिंगल एक्सटर्नल फोर्स और कपल मूवमेंट मस्ट एक्ट। हम या तो एक मूवमेंट ले लें या एक्सटर्नल फोर्स को निकालें, ये ना हो कि उसमें हम लोडिंग, मूवमेंट और स्लोप एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट्स कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एट द पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स और कपल मूवमेंट, ठीक है ना। अगर मोर देन एक्सटर्नल फोर्स और कपल मूवमेंट आर अप्लाइड देन द एक्सटर्नल वर्क ऑफ ईच लोडिंग वुड इन्वॉल्व इट एसोसिएट अननोन डिस्प्लेसमेंट। So all these unknown displacements could not be determined simultaneously since only the single 14-23 is available for the solution, ठीक है। तो ये इसकी आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर हम मूवमेंट और को से स्लोप और फोर्स से हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं अगर हम इंडिविजुअली कंसीडर करें, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी को समझा, स्ट्रेन एनर्जी के जो लोडिंग सिनेरियोज थे जिसके अंदर हमने एक्सियल और शेयर और बेंडिंग और टॉर्शनल इफेक्ट्स को कंसीडर किया, और साथ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से किसी भी बीम या एक्सियल ट्रस सिनेरियोज के अंदर हम बेसिकली डिफ्लेक्शन और स्लोप्स निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर जो स्ट्रेन एनर्जी का है उसमें हमने स्टडी की, ठीक है। अब हम फिर जाएंगे और हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को किस तरह से, जिसमें हमारे पास डाटा होगा न्यूमेरिकल डाटा, और हम कंसीडर करने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं।